آج ہم ایک ایسے شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک انسان نہیں بلکہ حق کا نشان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی زندگی ایک ایسی کہانی ہے جس میں جذبات، ایمان اور ہمت کا چشمہ ہے۔ ان کا جنم ایک ایسے گھرانے میں ہوا جہاں اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے تھے۔ حضرت علی نے بچپن سے ہی نہ صرف اسلام کو اپنایا بلکہ اپنے جذبے سے اسے آگے بڑھایا۔ ان کا نام سنتے ہی آج بھی دل میں ایک شدت محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کیسے ہر مشکلات کا سامنا کیا؟ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق جیسی جنگوں میں ان کا جو حوصلہ تھا وہ ہر مسلمان کے لیے مثال ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ وقت جب انہوں نے خلافت کی بیٹھک سنبھالی، جب مسلمانوں کے بیچ اختلافات بڑھ رہے تھے۔ ان کا ایمان اور ان کی صبر بھری زندگی ہم سب کو سکھاتی ہے کہ حق کی راہ پر کبھی نہیں جھکنا چاہیے۔ تو تیار ہو جائیے اس سفر پر نکلنے کے لیے جہاں ہم جانیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ لمحے جو ہر مسلمان کو انسپائر کرتے ہیں، ان کی جنگوں کی کہانیاں جو ان کی ہمت کو بیان کرتی ہیں، اور ان کا چند الزام جو ان کی وفات تک جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہے ایک مثال، ایک سبق جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 رجب 600 عیسوی کو مکہ میں ہوئی۔ ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا جو قریش کا ایک اہم قبیلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور ان کے پہلے ساتھی تھے جو اسلام کے پہلے دن سے ہی اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اللہ نے ان کے پیغمبر کے ساتھ خود کی پسند سے رکھا اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ان کی زندگی میں بہت اہمیت دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بنا کسی شک و شبہ کے اسلام کو قبول کیا۔ اس وقت ان کا مقصد اپنے مولا کے ساتھ رہنا اور ان کے خلافت کو اور بڑھاوا دینا تھا۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچانا شروع کیا تو قریش نے مسلمانوں پر زبر اور دباؤ شروع کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مولا کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ساری مشکلات کو جھیلا۔ مکہ کے مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا۔ 622 عیسوی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاباؤں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنے مولا کا ساتھ دیا۔ مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کی جان کے دشمن تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو خطرے میں ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ سے جان کی تحفظ کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا انتظار کرتے رہے جب تک انہوں نے سفر پورا نہیں کیا۔ مدینہ میں جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو انہیں بہت عزت دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مقام پر رہے۔ انہوں نے مدینہ میں اسلام کی بنیاد کو اور مضبوط کرنے میں مدد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لیڈرشپ اور بریوری کا اثر یہاں پر بھی دیکھا گیا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ ہے جو 17 رمضان 2 ہجری 624 عیسوی کو مدینہ کے قریب بدر کے میدان میں ہوئی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک جنگ تھی بلکہ اسلام کے فروغ کے لیے ایک امتحان بھی۔ آئیے اس جنگ کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے انصار مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے کیونکہ مکہ کے مشرکین ان کے خلاف ہو گئے تھے اور انہیں دین اسلام کا پیغام پھیلانے نہیں دیتے تھے۔ ہجرت کے بعد بھی قریش کے مشرک مسلمانوں کے خلاف تھے اور ان کے لیے ہر وقت خطرات پیدا کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد بھی
कुरैश के लोग मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते रहे और उनका माल छीन लेते थे। इन हालात में मुसलमानों ने अपना बचाव करने के लिए तैयारी शुरू की। कुरैश का एक बड़ा काफिला जो शाम से मक्का वापस आ रहा था, उस काफिले में कुरैश का बहुत सारा माल था जो वे तिजारत के लिए लेकर गए थे। मुसलमानों ने इस काफिले को रोकने का प्लान बनाया ताकि मक्का के लोगों को सबक सिखाया जा सके, क्योंकि वे मुसलमानों के लिए हर वक्त खतर बने हुए थे। लेकिन काफिले के लीडर अबू सुफियान ने मुसलमानों का प्लान समझ लिया और कुरैश के लोगों को मदीना पर हमला करने के लिए तैयार कर दिया। कुरैश का लश्कर 1000 अफराद पर मुश्तमिल था। इस लश्कर में मक्का के मशहूर और बाजू लोग शामिल थे, जिनमें अबू जहल, उतबा, शैबा और वलीद जैसे लोग आम थे। इनका मकसद था मुसलमानों को शिकस्त देकर इस्लाम को खत्म कर देना। दूसरी तरफ मुसलमान सिर्फ 313 अफराद पर मुश्तमिल थे, जिनके पास कुछ ही असलहा और संसाधन थे। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे, जबकि अक्सर लोग पैदल जंग के लिए गए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान लश्कर को हक और ईमान से लहजा कर तैयार किया। उन्होंने अपने अंसार से मशवरा किया और सब ने जंग में हिस्सा लेने का इरादा जाहिर किया। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत जुबैर जैसे अजीम अंसार इस लश्कर में शामिल थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान में अपना कायम मकाम तैयार किया और मुसलमानों को कत्ल के लिए तैयार किया। जंग का आगाज मक्का के चैंपियंस और मुसलमानों के बीच मुकाबले से हुआ। मक्का की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद सामने आए, जबकि मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हुम सामने आए। हजरत अली ने वलीद को शहीद किया, हजरत हमजा ने शैबा को हलाक किया और हजरत उबैदा ने उतबा को जख्मी कर दिया, लेकिन खुद भी जख्मी हो गए। इस मुकाबले के बाद जंग का असली आगाज हुआ। जंग के दौरान मुसलमानों की शुजाअत और यकीन ने कुरैश के लश्कर को हिलाकर रख दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे दिलेर मुसलमानों ने कुरैश के लश्कर के अफराद को शहीद किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरैश के मशहूर जंगजू को तलवार के एक वार से खत्म कर दिया, जो उनकी शुजाअत का सबूत था। इस दौरान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मदद की दुआ करते रहे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने मुसलमानों को हर कदम पर मदद दी। कुरान में भी इस वाक़ये का जिक्र है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ जंग में मदद की और उन्हें फतह नसीब हुई। मुसलमानों की मेहनत और अल्लाह के भरोसे ने कुरैश के लश्कर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुरैश के 70 अफराद को कत्ल किया गया और उनमें उनके सरबराह अबू जहल भी शहीद हो गए। इस जंग में 70 कुरैश के अफराद को कैद भी कर लिया गया। दूसरी तरफ मुसलमानों में सिर्फ 14 अफराद शहीद हुए, लेकिन जंग की फतह ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। जंग बद्र ने न सिर्फ मुसलमानों को एक नई पहचान दी, बल्कि इस्लाम के फरोग के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी दिया। इस जंग के बाद मुसलमानों को जज्बा मिला और उन्होंने अपने दीन को और भी ज्यादा फैलाया। यह जंग इस्लाम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसमें मुसलमानों ने अपनी ईमान और अल्लाह पर भरोसे की वजह से फतह हासिल की। जंग बद्र के बहुत गहरे असर मुसलमानों और मक्का के मुशरकीन पर हुए। कुरैश के लोग इस जंग में अपने करीबी रिश्तेदार और मशहूर जंगजू खो चुके थे, जिसने उनको और भी ज्यादा नाराज कर दिया। इस जंग के बाद मक्का के मुशरकीन ने मुसलमानों के खिलाफ और भी जंगें छेड़ी, लेकिन मुसलमानों का जज्बा और ईमान हमेशा बुलंद रहा। मुसलमानों के लिए यह जंग एक इम्तिहान था, जिसमें उन्होंने साबित किया कि अगर अल्लाह का भरोसा हो और हक के लिए लड़ाई हो, तो छोटी सी फौज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकती है। जंग बद्र ने इस्लाम के आगे के रास्ते का तय्युन किया और मुसलमानों को उनकी आने वाली जंगों के लिए तैयार किया। जंग बद्र ने न सिर्फ मक्का के मुशरकीन को शिकस्त दी, बल्कि यह इस्लाम के लिए एक अजीम फतह थी। मुसलमानों ने यह सबक हासिल किया कि अल्लाह पर यकीन और हक के लिए लड़ना कभी भी बेकार नहीं जाता। जंग बदर के बाद
मुसलमानों का मकाम और इज्जत मदीना और इर्द गिर्द के इलाकों में बढ़ गई। उन्हें सिर्फ एक लश्कर की जंग में फतह नहीं मिली थी, बल्कि यह इस्लाम के फरोग का एक बड़ी मंजिल थी। मक्का के मुशरिकों का जज्बा और गुस्सा बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने जंग में अपने बड़े मकसद को खो दिया था। इस जंग के बाद मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करने का फैसला किया, और इस बार उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हमला करने का इरादा किया। मुसलमानों के लिए भी बदर के बाद के हालात आसान नहीं थे। मदीना के अंदर मुनाफिकीन भी मौजूद थे, जो जाहिर में इस्लाम का दावा करते थे, लेकिन अंदर से दुश्मन थे। ये लोग मुसलमानों के दुश्मनों को मदद पहुंचाने का काम करते रहे। साथ ही मदीना के इर्द गिर्द के कबाइल भी मुसलमानों के खिलाफ फितना फैलाने में मसरूफ हो गए। अब मक्का के मुशरिकों ने बदर की शिकस्त का बदला लेने का इरादा कर लिया था, और ये बदला वो जंग ए उहद के जरिए लेने आए। जंग बदर के 1 साल बाद मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों के खिलाफ एक नई जंग का प्लान बनाया। अबू सुफियान ने मक्का के सब लोगों को इकट्ठा किया, और इस जंग में मक्का के मशहूर और नामवर लोग शामिल हुए। मुशरिकों का मकसद था कि मुसलमानों को नाकाम करना और इस्लाम को खत्म करना। मक्का के 3000 से ज्यादा लश्कर तैयार किया गया, और उन्होंने मदीना की तरफ रुख किया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जंग की खबर मिली, और उन्होंने अपने असहाब से मशवरा किया कि इस जंग का सामना कैसे किया जाए। अक्सर मुसलमानों ने यह मशवरा दिया कि मदीना के अंदर रहकर जंग की जाए, लेकिन कुछ जवान असहाब ने यह कहा कि हम बाहर जाकर जंग करेंगे। आखिर में यह फैसला हुआ कि मदीना के बाहर उहद के पहाड़ों के पास जंग की जाए। मुसलमानों का लश्कर 1000 अफराद पर मुस्तकमिल था, लेकिन मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबाय जंग से पहले ही 300 लोगों को लेकर लश्कर से अलग हो गया। इससे मुसलमानों के पास सिर्फ 700 अफराद रह गए। मुसलमानों में बहुत से अजीम असहाब जैसे हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत अबू दुजाना और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले कुछ खास हिदायत दी थी, जिसमें से सबसे अहम यह थी कि उहद के पहाड़ों के एक मुकाम पर 50 तीरंदाजों को मुयत्तिन किया गया, और उन्हें कहा गया कि जंग के दौरान किसी सूरत इस जगह को छोड़कर नहीं हिलना, चाहे मुसलमानों को फतह हो या न हो। जंग का आगाज इस बार भी एक आम मुकाबले से हुआ। मक्का के जंगजू सामने आए और मुसलमानों के चैंपियंस उनका मुकाबला करने लगे। हजरत अली और हजरत हमजा ने बहुत से मुशरिकों को कत्ल किया, और मुसलमान लश्कर के हौसले बुलंद हो गए। मुसलमानों की शुजाअत और तहकीकात की वजह से मुशरिकों का लश्कर पीछे हटने लगा। मुशरिक अपने लश्कर में परेशान हो गए, और मुसलमानों को फतह नजर आने लगी थी। इस दौरान मुसलमानों के तीरंदाज जो पहाड़ों पर थे ने देखा कि मुशरिक पीछे हट रहे हैं, और उन्हें लगा कि जंग खत्म हो चुकी है। उन्होंने अपनी जगह छोड़कर माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह हिदायत दी थी कि वो अपनी जगह छोड़कर ना हिलें। जब मुशरिकों के सरदारों ने देखा कि तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी है, उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। खालिद बिन वलीद, जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने अपने लश्कर के साथ पहाड़ों के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान जो पहले ही फतह का जश्न मना रहे थे, अचानक मुशरिकों के हमले से हैरान हो गए। मुसलमानों के दरमियान इंतजाम बिगड़ गया, और मुशरिकों ने इस मौके का फायदा उठाया। मुसलमान लश्कर के कई अफराद शहीद हो गए, और जंग का पलटाव मुशरिकों के हक में चला गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस जंग में शहादत का मर्तबा हासिल कर गए। उन्हें हिंद बिन उतबा ने गुस्से और इंतकाम के जज्बे में शहीद करवाया, क्योंकि हजरत हमजा ने बदर में हिंद के वालिद और भाई को कत्ल किया था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्मी होना इस जंग के दौरान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मुशरिकों का हमला हुआ। उन्हें कुछ जख्म आए, और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुसलमान लश्कर को गलत खबर मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। यह खबर सुनकर मुसलमान लश्कर में होश और हवास खत्म हो गया। लेकिन जब यह पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, तो मुसलमान दोबारा मोर्चा संभालने लगे।
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत तलहा और दूसरे असहाब ने बचाया और उन्हें एक महफूज जगह पर ले जाया गया। जंग के आखिरी दौर में मुसलमानों ने दोबारा इकट्ठा होकर अपना दिफा किया, लेकिन जंग का नतीजा मुशरिकों के हक में रहा। जंग ए उहद के बाद मुसलमानों ने अपने शहीद असहाब को दफन किया। 70 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। मक्का के मुशरिक अपनी फतह का जश्न मनाकर वापस चले गए, लेकिन वो मुसलमानों का हौसला नहीं तोड़ सके। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को समझाया कि यह एक इम्तिहान था और अल्लाह पर भरोसा और सब्र इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। जंग ए उहद ने मुसलमानों के लिए एक नसीहत छोड़ दी कि अल्लाह के हुक्म पर पूरा पूरा अमल करना जरूरी है। तीरंदाजों की गलती की वजह से यह जंग पलट गई थी, लेकिन मुसलमानों का जज्बा और ईमान बरकरार रहा और उन्होंने इस जंग के बाद और भी ज्यादा होशमंद और तहकीकात के साथ अगले वाकयात का सामना किया। जंग ए उहद एक अहम वाकया था जो मुसलमानों को यह सबक देकर गया कि जंग में सिर्फ ताकत और जज्बा काफी नहीं होता, बल्कि हमेशा तहकीकात और हिदायत पर अमल करना जरूरी होता है। यह जंग मुसलमानों के लिए एक टेम्पररी सेटबैक थी, लेकिन इसके बाद भी इस्लाम का फरोख रोकने वाला नहीं था। मुसलमानों ने अपनी गलतियों से सीखा और अल्लाह पर अपना यकीन और ज्यादा मजबूत किया। जंग ए उहद के बाद मुसलमान मदीना में एक छोटे से अंतराल के लिए इम्तिहान और सब्र का सामना कर रहे थे। उहद में हुई छोटी सी नाकामी के बावजूद मुसलमानों का जज्बा और ईमान मजबूत रहा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को तसल्ली दी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करते रहने का हौसला दिया। इस दौरान मक्का के मुशरिकीन मुसलमानों के खिलाफ अपनी हरकतों में लगातार मशगूल रहे। बदर और उहद के बाद वे मुसलमानों को एक बार फिर खत्म करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन उनके पास कोई खास मौका नहीं था। मुसलमानों ने अपनी जंगजू तैयारियों को बेहतर बनाया और मदीना को बचाने के लिए नई सोच समझी रणनीति बनाई। मदीना के अंदर मुनाफिकीन और यहूदियों के बीच भी गद्दारी का अंदेशा बढ़ गया था, जो मुसलमानों के लिए एक और बड़ी चुनौती थी। इसी बीच मक्का के मुशरिकों ने दूसरी बार मुसलमानों पर एक बड़े हमले का प्लान बनाया, जो जंग-ए खंदक के नाम से मशहूर हुई। जंग-ए उहद के कुछ साल बाद मक्का के मुशरिकों ने एक और मुकम्मल जंग का प्लान बनाया। इस बार उन्होंने एक विशाल गठबंधन बनाया, जिसमें कुरैश, यहूदी कबीले और गैर मुस्लिम कबीले का इत्तेहाद था। यह जंग मुसलमानों को मदीना से निकालने और इस्लाम का सफाया करने के लिए थी। मुशरिकों का लश्कर 10,000 अफराद पर मुस्तकमिल था और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एकजुट होकर मदीना पर चढ़ाई का इरादा किया। इस जंग का वाकया 627 ईस्वी 5 हिजरी में मदीना के बिल्कुल बाहर हुआ। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुशरिकों के इत्तेहाद की खबर मिली तो उन्होंने अपने असहाब के साथ मशवरा किया कि इस जंग का कैसे सामना किया जाए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि मदीना के आसपास एक खंदक खाई खोदी जाए जो मुशरिकों के लश्कर को मदीना तक पहुंचने से रोके। मुसलमानों ने हजरत सलमान फारसी के मशवरे को एक्सेप्ट करते हुए मदीना के आसपास एक गहरी खंदक खोदने का काम शुरू किया। खंदक का कयाम एक असरदार प्लान थी जो उस वक्त के अरब में नई थी। मदीना की तरफ मुशरिकों के लिए आसान रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें खंदक पार करना मुश्किल लग रहा था। मुसलमानों ने खंदक को चारों तरफ से महफूज किया और अपनी जंगजू तैयारियों में मशगूल रहे। मुसलमान औरतें और बच्चे मदीना के अंदर महफूज जगहों पर मौजूद थे, जबकि मुसलमान मर्दों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के बाहर खंदक के करीब मोर्चा संभाला। मक्का के मुशरिकों ने जब देखा कि मदीना के आसपास एक गहरी खंदक खोदी गई है तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने इससे पहले कभी खंदक का इस्तेमाल नहीं देखा था। मुशरिकों का लश्कर मदीना के पास पहुंच गया, लेकिन खंदक की वजह से वे मुसलमानों पर सीधा हमला नहीं कर सके। मुशरिकों के जंगजू जैसे खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, ने कोशिश की कि खंदक को पार करें, लेकिन मुसलमानों ने तीरों और पत्थरों से उन्हें रोक दिया। यह जंग असल में एक घेराबंदी, घेरा डाली की सूरत में बदल गई।
मुशरिकों ने मदीना का घेरा कर लिया, लेकिन वे खंदक की वजह से अंदर नहीं आ सकते थे। इस जंग में एक काबिल जिक्र वाक़या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी थी। मुशरिकों का एक मशहूर जंगजू अमर बिन अब्द वुद, जो अरब के सबसे बड़े और बहादुर जंगजुओं में से था, खंदक को पार कर गया और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। अमर ने मुसलमान लश्कर को चकराने की कोशिश की, लेकिन कोई सामने नहीं आया। तब हजरत अली ने अमर का सामना किया और उनके बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। हजरत अली ने अमर को कत्ल कर दिया और इससे मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। जंग खंदक के दौरान मुसलमानों ने सब्र और तहकीकत से काम लिया। वे मुशरिकों के हमलों को रोकने में कामयाब रहे और मुशरिकों ने कई बार कोशिश की कि खंदक को पार करें, लेकिन उन्हें हमेशा नाकामी मिली। मुसलमानों ने एक और अहम रणनीति यहूदी कबीले के साथ ताल्लुकात को तहकीकत के जरिए बरकरार रखकर की। मदीना में मौजूद यहूदियों में से बानु कुरैजा का कबीला मदीना का अहद तोड़कर मुशरिकों का साथी बन गया, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें अंदर से सपोर्ट को रोक दिया और अपने बचाव को और मजबूत बना लिया। इस जंग का सबसे अहम मरहला तब आया जब मुशरिकों के लश्कर को एक बड़ी फितरत का सामना करना पड़ा। अल्लाह ने एक जबरदस्त तूफान और आंधी भेजी जो मुशरिकों के लश्कर के खेमों को उखाड़ फेंक गई। मुशरिकों का इत्तेहाद टूट गया और उनका लश्कर बिखर गया। लश्कर के लोग थक गए और किसी नतीजे के बगैर वे वापस मक्का चले गए। जंग खंदक मुसलमानों की एक अजीम फतह थी जो बिना किसी बड़े जानो माल के नुकसान के हासिल हुई। यह जंग मुसलमानों के लिए एक सब्र का इम्तिहान था, लेकिन उन्होंने अपने तहकीकत और अल्लाह के भरोसे से इस जंग को जीत लिया। यह जंग मुसलमानों के लिए एक बड़ी अजीम फतह थी जो उनके दुश्मनों के मनोबल को तोड़ गई और इस्लाम का मकाम और बढ़ गया। इस जंग के बाद मुसलमानों का मकाम अरब में ज्यादा मजबूत हो गया और उनके दुश्मनों का इत्तेहाद टूट गया। मुशरिकों को यह समझ आ गया कि वे मदीना को सीधा हमला करके फतह नहीं कर सकते। यह जंग इस्लाम की तारीख में एक अजीम मरहला था जो मुसलमानों के जज्बा, ईमान और तहकीकत का नमूना बना। मुसलमानों के लिए यह सब्र, तहकीकत और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल थी। जंग खंदक के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी कबीलों के साथ अपने ताल्लुकात को ज्यादा तहकीकत के साथ देखा और मदीना को एक बार फिर बचाने के लिए तैयारियां बढ़ गईं। जंग खंदक के बाद मुसलमानों का मकाम अरब में ज्यादा मजबूत हो गया। मदीना में सुकून और अमन का दौर शुरू हो गया, लेकिन यहूदियों के कुछ कबीले जो मदीना के आसपास बसते थे, उनका रवैया अब भी मुसलमानों के लिए खतरनाक था। ये कबीले जो अब भी मुशरिकों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल आखिर डील करना जरूरी समझा। जंग खंदक ने मुशरिकों के हौसले को तोड़ दिया था और वो अब मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़े अभियान के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यहूदियों के कबीले जो खैबर के किलों में रहते थे, वो मुसलमानों के लिए एक नए खतरे का सबब बन गए थे। खैबर यहूदियों का एक मजबूत मरकज था जहां से वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशों और जंगजू तैयारियों में लगे हुए थे। इसलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों के खिलाफ एक जंग का फैसला किया। खैबर मदीना के उत्तर में 150 मील की दूरी पर था और यहूदियों का यह इलाका उनके जंगजू किलों की वजह से मशहूर था। खैबर में यहूदियों के 7 बड़े किले थे जिन्होंने उन्हें हमेशा जंग में फौजियों और हथियारों की मदद फराहम की थी। खैबर के यहूदी कबीले मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकों के साथ मिलकर भगत कर रहे थे और मुसलमानों के दिफा के लिए एक बड़े खतरे की सूरत में सामने आए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का फैसला किया कि खैबर के यहूदियों के खिलाफ एक जंग की जाए ताकि उनकी जंगजू कुव्वत को खत्म किया जा सके। मुसलमानों का लश्कर 1400 के आसपास था, जबकि यहूदियों का किला मजबूत और जंगजू रिसोर्सेस से भरा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ खैबर का रुख किया। खैबर के यहूदी कबीलाई जंग के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान उनके किलों पर हमला करेंगे। खैबर के किलों का मुहासरा
मुसलमानों के लिए एक मुश्किल चैलेंज था, क्योंकि किला ऊंचा और मजबूत था। मुसलमानों ने खैबर के किलों को एक एक करके फतह करना शुरू किया। सबसे पहला किला जो मुसलमानों ने फतह किया वो नाइम था, जिसमें सबसे ज्यादा जंगजू फौज थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस जंग में एक काबिल जिक्र मुकाम हासिल हुआ। वो मुसलमान लश्कर के अमीर बनाए गए और उन्होंने खैबर के जंगजुओं का जुर्रत और शुजात के साथ सामना किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जंगजू कारबाइयों का वाक़या खैबर में बहुत मशहूर है। जब मुसलमान किला नाइम के सामने रुके रहे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल उन्हें वो परचम देंगे जो किसी ऐसे शख्स के हाथ में होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिसे अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत करते हैं। अगले दिन यह परचम हजरत अली को दिया गया। हजरत अली ने खैबर के सबसे जबरदस्त जंगजू मरहब को मुकाबले में कत्ल कर दिया, जो यहूदियों का सबसे बहादुर फौजदार माना जाता था। मरहब की मौत के बाद यहूदियों के हौसले टूट गए और मुसलमानों ने एक के बाद एक किला फतह कर लिया। इस जंग में मुसलमान लश्कर एक एक करके खैबर के किलों को फतह करता गया। नाइम के बाद कामुस, शक और नजार के किले भी मुसलमानों के कब्जे में आ गए। खैबर के यहूदियों ने जब देखा कि मुसलमान उनके किलों को फतह कर रहे हैं तो उन्होंने बिल आखिर सुलह की दरख्वास्त की। जंग खैबर के बाद यहूदियों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह का मामला किया। सुलह के मुताबिक यहूदी खैबर में रहने की इजाज़त पा गए, लेकिन उन्हें अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा मुसलमानों को देना पड़ा। यह एक तरह का जजिया था जो यहूदियों को हर साल अदा करना होता था। जंग खैबर मुसलमानों की एक बड़ी फतह थी। इस जंग ने न सिर्फ मदीना के आसपास के कबीले को मुसलमानों के खिलाफ साजिशों से रोका, बल्कि यहूदियों का इख्तियार भी खैबर के किलों पर ख़त्म हो गया। यहूदियों को खैबर के जंगजू कबीले के तौर पर ख़त्म कर दिया गया और यह फतह मुसलमानों के लिए इख्तिलाफ और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनी। जंग खैबर के बाद मुसलमानों का मकाम अरब में ज़्यादा मजबूत हो गया। यहूदी कबीले का ख़ात्मा और खैबर के किलों की फतह ने मुसलमानों को जंगजू कुव्वत और सियासी इक़्तिदार दिया। यह जंग मुसलमानों के लिए एक बड़ी तारीख़ी फतह थी, जिसमें अल्लाह की मदद और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फराजत का ज़बरदस्त किरदार था। खैबर के बाद मुसलमान अरब के दूसरे इलाकों में भी अपना असर और रासुख बढ़ाने लगे और यहूदियों और मुशरिकों के खिलाफ मुसलमानों का मकाम ज़्यादा ऊंचा हो गया। उसके कुछ अरसे बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा लिया। उसके बाद जंग कैमल जो 656 ईस्वी में हुई, इस्लामी इतिहास की एक बड़ी अहम और गमगीन जंगों में से एक है। यह जंग खलीफात के आरंभिक दौर के खलीफात का मामला, राजनीति और व्यक्तिगत खींचतान की वजह से हुई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफात पर फाइज हुए, मगर हजरत उस्मान के कातिल अब तक पकड़े नहीं गए थे और उनके कत्ल पर बदले की मांग कई सहाबा में फैल गई थी। यह जंग इन तनावों का नतीजा थी। हजरत उस्मान के कत्ल के बाद मदीना के लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से खलीफात का जिम्मा लेने की दरख्वास्त की। पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया, लेकिन लोगों के बढ़ावा देने पर उन्होंने खलीफात स्वीकार कर ली। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो उनका पहला मकसद था देश में अमन और इत्तेहाद कायम करना, लेकिन हजरत उस्मान के कातिल अब तक आज़ाद घूम रहे थे, जो हजरत अली के लिए एक बड़ा मसला बना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से हजरत तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूल अल्लाह के करीबी सहाबा में से थे, उन्होंने हजरत उस्मान के कातिल का बदला लेने का मुतालिबा किया। उनका कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब तक कातिल को सजा नहीं दी है। इस वजह से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लोगों को खलीफात के हिसाब से उठाया और बसराह का रुख किया, जहां हजरत तलहा और जुबैर भी उनके साथ हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा
कि एक बड़ा तबका हजरत आयशा के साथ खलीफात के मामले पर इख्तिलाफ कर रहा है और जंग का इरादा रखता है, तो उन्होंने अपने लश्कर को बसराह की तरफ ले जाना जरूरी समझा। हजरत अली का मकसद जंग को टालना था, मगर हालात ऐसे हो गए कि जंग ए कैमल का आगाज हो गया। जंग ए कैमल का नाम उस ऊंट कैमल की वजह से पड़ा जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सवार थीं। जब जंग शुरू हुई, हजरत आयशा का ऊंट एक केंद्रीय बिंदु बन गया जिसे दोनों लश्करों ने अपनी अपनी तरफ खींचा। हजरत तलहा और जुबैर ने हजरत अली के साथ जंग करने का फैसला किया, मगर हजरत अली के लश्कर में भी कई रसूल अल्लाह के करीबी सहाबा शामिल थे। जंग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि हजरत आयशा का ऊंट जंग का केंद्रीय निशान बन गया। जंग में एक वक्त ऐसा आया कि हजरत तलहा और जुबैर को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी और उन्हें जंग से पहले कत्ल कर दिया गया। जंग के दौरान हजरत आयशा के ऊंट को निशाना बनाया गया और जब ऊंट गिरा तब जंग का इख्तिताम शुरू हो गया। जंग ए कैमेल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज जीत गई। हजरत तलहा और जुबैर जंग में शहीद हो गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इज्जत के साथ मदीना वापस भेजा गया। हजरत अली ने जंग के बाद माफी का मौक़िफ़ अपनाया और सबको अमन और सुलह की तरफ बुलाया। जंग ए कैमल इस्लामी इतिहास का एक गमगीन वाक़या था जिसमें इस्लामी उम्मत के दो बड़े ग्रुप एक दूसरे के मुकाबिल आए। इस जंग के बाद मुसलमानों के दरमियान जो इख्तिलाफ थे वो गहरे हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग के बाद बहुत कोशिश की कि देश में अमन और इत्तेहाद कायम हो, लेकिन जंग के असर अब भी कायम रहे। जंग ए कैमल एक गमगीन यादगार है जो इस्लामी सियासत और इख्तिलाफ का ज़बरदस्त नतीजा थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम ज़्यादा मजबूत हो गया, लेकिन इस्लामी उम्मत के दरमियान जो फ़र्क पैदा हुआ उसने ज़्यादा जंगों का रास्ता खोल दिया। जंग ए सफ़ीन जो इसके बाद हुई इन इख्तिलाफ़ों को और गहरा कर गई। जंग ए कैमल के बाद इस्लामी रियासत में इख्तिलाफ और विवाद का सिलसिला और बढ़ गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जंग ए कैमल में जीत ज़रूर मिली थी, लेकिन यह जीत मुसलमान उम्मत के बीच के फ़र्क को ख़त्म करने में नाकाम रही। हजरत तलहा और जुबैर के वफ़ात के बाद मुसलमानों में गुस्सा और कन्फ्यूजन अब भी बरकरार था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इज्जत के साथ मदीना वापस भेज दिया गया, लेकिन इस्लामी उम्मत के बीच जो एक सियासी इख्तिलाफ और फितना पैदा हो चुका था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सका। जंग ए कैमल के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना से कूफा को अपनी नई सियासी मरकज बनाया। कूफा एक अजीम इस्लामी मरकज था जहां हजरत अली को बहुत से समर्थक मिले, मगर दूसरी तरफ मुआविया इब्न अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत उस्मान के कत्ल के वक्त शाम के गवर्नर थे ने हजरत अली की खलीफत को तस्लीम नहीं किया था। उनका यह मौक़िफ़ था कि जब तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल को कानून के कटहरे में लाकर सजा नहीं दी जाती वो हजरत अली को खलीफत में नहीं मानेंगे। यह विवाद जंग ए सफ़ीन का जरिया बना। जंग ए सफ़ीन का पार्श्वभूमि इस्लामी रियासत में बढ़ते सियासी इख्तिलाफों से जुड़ा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफत अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन मुआविया इब्न अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो शाम के कवि और असरदार गवर्नर थे ने हजरत अली की खलीफत को तस्लीम नहीं किया। मुआविया ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का बदला लेने का मुतालिबा किया और यह कहा कि जब तक हजरत उस्मान के कत्ल में शामिल अफराद को सजा नहीं दी जाती तब तक वो हजरत अली के साथ सुलह नहीं करेंगे। इस विवाद ने इस्लामी दुनिया को दो अजीम ताकतों के बीच मुकाबिल बना दिया। शाम के कबीले और तजुर्बाकारी लश्कर जो मुआविया के साथ था और इराक के लश्कर जो हजरत अली के साथ था आपस में जंग के करीब आ गए। 657 ईस्वी में सफ़ीन के माकाम पर जो यूफ्रेटिस के करीब था यह जंग हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुआविया को सुलह और मसला का पैगाम दिया था, लेकिन मुआविया ने इस पैगाम को रद्द कर दिया। दोनों फौजें सफ़ीन के मैदान में आमद शुरू कर चुकी थीं। जंग के आगाज में दोनों फौजें कुछ दिन तक मैदान में मुकाबिल आईं, लेकिन कोई भरपूर एक्शन नहीं लिया गया।
छोटी छोटी झड़पें होती रहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर जंग का आगाज नहीं हुआ। जंग का असली आगाज उस वक्त हुआ जब हजरत अली की फौज ने यूफ्रेटिस का पानी मुआविया की फौज के लिए रोक दिया। इस पर मुआविया ने जवाब में अपनी फौज को हजरत अली की फौज के सामने लाकर जंग के लिए तैयार किया। जंग बिलाखिर शुरू हुई और दोनों तरफ से खून रेजी का सिलसिला शुरू हो गया। जंग सफीन एक बहुत ही खौनी और भारी जंग थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया के लश्कर के बीच कई दिन तक जंग होती रही। दोनों लश्करों में बहुत से मुअज्जज, असहाब और फौजियां शहीद हुईं। हर रोज जंग का नया मोड़ आता था, लेकिन कोई फैसले का दिन नजर नहीं आता था। जंग के दौरान हजरत अली की फौज ज्यादा कुर्बानियां दे रही थी, लेकिन उनका हौसला और जुनून अब भी बरकरार था। दूसरी तरफ मुआविया की फौज भी अपनी जगह मजबूती से लड़ रही थी। जंग में दोनों तरफ से तकरीबन 70,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। जंग जब अपने फैसले के करीब थी, तब मुआविया ने एक धांधली का रुख अपनाया। उन्होंने अपने लश्कर के साथियों को कुरान के सफ़े अपने नुज पर उठाने का हुक्म दिया, जिससे यह पैगाम दिया गया कि वो कुरान के जरिए सुलह करना चाहते हैं। हजरत अली की फौज का एक बड़ा तबका इस मकारी का शिकार हो गया और जंग को रोकने पर जोर देने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह ख्याल था कि यह मुआविया की एक चाल है, लेकिन उनकी फौज के कुछ अफराद ने इस मुखाफ का इज्जत नहीं किया और जंग को रोकने पर आमादा हो गए। मुआविया की इस चाल के बाद जंग को रोक दिया गया और दोनों तरफ से एक तहकीम, आर्बिट्रेशन का फैसला किया गया। हजरत अली की तरफ से हजरत अब्बू मूसा अशरी को तहकीम का जिम्मा दिया गया, जबकि मुआविया की तरफ से अम्र इब्न अलास को यह जिम्मा मिला। लेकिन यह तहकीम भी सियासी दानों और धांधली का निशाना बन गई। तहकीम का नतीजा हजरत अली के हक में नहीं निकला और इस वजह से उनकी फौज का एक बड़ा तबका, जो खवारिज के नाम से मशहूर हुआ, उनसे अलग हो गया। खवारिज का यह मुखाफ था कि किसी भी इंसानी तहकीम को मानना शिर्क है, और इसलिए वो हजरत अली के खिलाफ हो गए। जंग सफीन इस्लामी इतिहास का एक और बहुत ही अहम और दिल शिकस्त वाक़या था। इस जंग ने मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ को और गहरा कर दिया और इस्लामी उम्मत में एक अजीम डिवीजन को जन्म दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग के बाद भी अपनी फौज और रियासत को संभालने की कोशिश की, लेकिन इन फितनों ने उनके रूल को बहुत नुकसान पहुंचाया। जंग सिफ़ीन के बाद इस्लामी उम्मत में सियासी और मजहबी इख्तिलाफ और बढ़ गए, जो आज तक इस्लामी इतिहास का एक शर्मनाक हिस्सा है। जंग सिफ़ीन के नतीजे में जो मुशाहिदात हुए, वो इस्लामी दुनिया में एक अहम मोड़ साबित हुए। इस जंग के बाद मुस्लिम समाज दो बड़े फिरकों में बंट गया, शिया और सुन्नी। जंग सिफ़ीन के बाद जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बीच सुलह की कोशिशें हुईं, तो इसे लेकर उम्मत में गहरा इख्तिलाफ पैदा हो गया। खवारिज नाम के एक ग्रुप ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले से नाखुश होकर अलग राह अपनाई। उनका मानना था कि इंसानों के फैसले की जगह सिर्फ अल्लाह का हुक्म होना चाहिए, और इसी के चलते उन्होंने हजरत अली की खिलाफत से बगावत कर दी। शिया इस बात पर यकीन रखता था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बाद उनकी औलाद ही खिलाफत के सही हकदार हैं। उनके नजरिए में खिलाफत सिर्फ हजरत अली के घराने तक महदूद होनी चाहिए थी, और इस्लामी लीडरशिप का ये हक उन्हीं का है। वहीं दूसरी तरफ सुन्नी ये मानते थे कि खिलाफत का सिलसिला चारों खलीफाओं खुलफा ए राशिदीन तक जारी रहेगा, और ये इस्लाम की सही तरतीब है। जंग सिफ़ीन के बाद होने वाली यह सियासी और मजहबी तफरीक धीरे धीरे गहराती चली गई, और इससे मुस्लिम उम्मत में दो बड़े फिरके वजूद में आए, शिया और सुन्नी। क्या मुझे इन दो बड़े फिरकों यानी शिया और सुन्नी, इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में दें और हमें सब्सक्राइब भी करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जंग नहरवान जो 658 ईस्वी में हुई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के दौरान का एक अहम वाकया है। इस जंग का पसे मंजर जंग सिफ़ीन के बाद का था, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे थे। जंग सिफ़ीन के बाद जब खवारिज ने हजरत अली
रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को खिलाफ समझकर अलग होना शुरू किया तो उनका जज्बा इतना बढ़ गया कि जंग करना उनके लिए लाजमी बन गया। जंगे सिफ़ीन के बाद खवारिज ने अपने आपस में एक नया नज़रिया बना लिया। उनका कहना था कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसानी फैसले को कबूल किया और यह अल्लाह की हुकूमत के खिलाफ है। इनका ये मकसद था कि वे मुसलमानों की उम्मत को सिर्फ अल्लाह की हुकूमत के जरिए ही संभालना चाहते थे, इसलिए वे किसी भी इंसानी खिलाफत को नहीं मानते थे। खवारिज का ये तबका अपने अकीदे पर बहुत ही मजबूत था और इन्होंने हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत से बेहक समझकर उनके खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इन खवारिज के खिलाफ जंग करने का फैसला करना पड़ा। उनका मकसद था कि वे इन्हें रोककर मुसलमानों के इख्तिलाफात को ख़त्म करें। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और जंग की तैयारियां शुरू की। उनका ये इरादा था कि वे इन खवारिज के जज्बे को ख़त्म करें और मुसलमानों को एक जगह लाएं। जंग नहरवान का आगाज़ 658 ईस्वी में नहरवान के मुकाम पर हुआ। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज के साथ खवारिज के खिलाफ जंग का आगाज किया। जंग की पहली शुरुआत में दोनों तरफ से छोटी झड़पें होती रहीं, लेकिन बाद में जंग ने भारी रूप ले लिया। जंग के दौरान हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने समर्थकों को समझाना शुरू किया कि यह जंग मुसलमानों के दरमियान के इख्तिलाफ का नतीजा है। उन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट किया कि वे अपने जज्बे को बरकरार रखें और मुश्किल वक्त में अपना हौसला ना खोएं। खवारिज की तरफ से भी उनका जज्बा काफ़ी ऊंचा था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को खिलाफ समझना था। इस जंग में दोनों तरफ से खून खराबा शुरू हो गया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज ने खवारिज के खिलाफ एक कामयाब जांच का प्रबंध किया, लेकिन खवारिज भी किसी से कम नहीं थे। जंग के दौरान हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत से लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन खवारिज का जज्बा इतना बढ़ गया था कि वे हज़रत अली को सिर्फ खिलाफत का इखलाक़ समझते थे। जंग के दौरान हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा दिया कि वे खुद को सिर्फ अल्लाह की हुकूमत का भक्त समझते हैं और किसी भी इंसानी हुकूमत को नहीं। जंग नहरवान के बाद हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खवारिज के खिलाफ जंग के बाद उनकी अथॉरिटी पर सवाल उठने लगे थे। खवारिज के लोग जो उन्हें खिलाफत का हकदार नहीं समझते थे, उन्होंने उनके खिलाफ दुश्मनियां बढ़ाई। इस दौरान हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने समर्थकों को इकट्ठा करने की कोशिश की और उन्हें अपने हक और इंसाफ का पैगाम दिया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार लागू किए। उन्होंने इमारत फौरी और समस्याओं का हल करने के लिए नई नीतियां बनाई। उनका मकसद था कि लोगों के बीच इंसाफ और बराबरी का सोच बरकरार रहे। उन्होंने बेहतरीन गवर्नेंस का मॉडल पेश करने की कोशिश की। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसाफ और अदल का पैगाम दिया। उनका कहना था कि इंसाफ बिना किसी तरफदारी के होना चाहिए। इस वजह से उनकी रेप्यूटेशन मुसलमानों के बीच बढ़ गई। उन्होंने लोगों से कहा कि वो उन्हें अपने मसाइल बताएं ताकि उन्हें सुनने और हल करने का मौका मिले। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तालीम और इल्म को बहुत अहमियत दी। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद एक इल्मी शख्सियत थे और उन्होंने अपने दोस्तों और समर्थकों को इल्म हासिल करने की तरफ बढ़ावा दिया। उनके नज़र में इल्म का असर लोगों के बेहतर फैसलों पर होता था और इसी वजह से उन्होंने मस्जिद और मदरसों की बुनियाद रखने की कोशिश की। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का वक्त ऐसे हालात में गुजरा जहां उन्हें बार बार अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। मुआविया इब्न अबी सुफियान की तरफ से हमेशा एक खतरा बना रहता था। मुआविया ने अपने समर्थकों को तैयार किया और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत से बेदखल करने की कोशिश की। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में सामाजिक मसलों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने मसाइल जैसे गरीबी, जाली मुद्रा और बेइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाई।
उनका कहना था कि एक नेता को अपने लोगों की समस्याओं का ख्याल रखना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात 661 ईस्वी में हुई। 19 रमजान को उन्हें कूफा की मस्जिद में एक खारिजी ने जानबूझकर जख्म दिया जब वो इबादत कर रहे थे। उनकी वफात का वाकया मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी वफात से पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी आखिरी वसीयत की। उन्होंने इंसाफ, हक और मुसलमानों के बीच मोहब्बत की बातें की। इस वक्त उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि वो हक के लिए कभी न रुकें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र नजफ इराक में है। यह मकाम आज भी मुसलमानों के लिए एक अहम जगह है जहां लोग उन्हें याद करते हैं। उनका किरदार और उनकी जिंदगी मुसलमानों के लिए एक मिसाल है जो आज भी लोगों के दिलों में है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी एक अहम पैगाम है जो इंसाफ, हक और ईमान पर आधारित है। उन्होंने अपने वक्त की हर चुनौती का सामना किया और हमेशा हक और इंसाफ के लिए लड़ते रहे। उनकी वफात ने मुसलमानों के बीच एक नई सोच का आगाज किया जिससे आज भी लोगों को सबक मिलता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी और उनका किरदार हम सब के लिए एक मिसाल है जो हमेशा याद रहेगा।